that you have to end up paying some amount to people. There are a lot of people who even called me and said that you will have to end up paying 50,000. Then we can just we can take you forward in this career. But I think these were just the not the right thing. I think you just work always gets you work. You'll be good at your work and it will call you. तो आप जब एक प्रोजेक्ट साइन करते हो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? When you sign a project, what all things you should take into consideration? First, client कौन है? बहुत जरूरी है आपका ये जानना कि क्लाइंट कौन है और आप क्या उस क्लाइंट के साथ वैसी ऑफरिंग में अपना नाम अलाइन करना चाहते हो. बिकॉज जैसे मेरे साथ है, मैंने आज तक किसी भी अल्कोहल ब्रांड के साथ अपने आप को अलाइन नहीं किया है. क्यों? रीजन है मैं खुद नहीं पीता हूं तो मैं बोलता हूं कि मैं जाके प्रमोट भी नहीं करूंगा. So sometimes I feel that's where your sensibility comes into play, whereby sometimes you should just know how to say no. Comes the contract. आपके सामने जब कॉन्ट्रैक्ट आता है, you need to read every line of it. बिकॉज हर लाइन में कुछ हो सकता है. क्योंकि आप लोग हो सकता है बहुत सारे लोग नया शुरू कर रहे हो तो आप शायद लीगल हेल्प ना ले पाओ. अगर ले पाओ तो बहुत अच्छा है, ना ले पाओ तो अच्छे से बैठकर पढ़ो. सबसे पहले मैं देखती हूँ कि मेरा अमाउंट सही है. सही है. सबसे पहले मेरा वही चाहते हैं, बजट मैंने जो बोला है वो लिखा है कि नहीं. You're going to receive your payments. Payments are very crucial. How many days are you going to be utilized? Where all your pictures are going to be utilized? How are you going to be promoted in that project, depending on what project you're doing? Everything. You have to look into everything meticulously. Also, what is the outcome of the project and how you're going to get benefited from it? And the list goes on. I can go on, but read the contract. Usage. Very important. Yeah. Primarily. What kind of usage? When you say usage, everything that you say, just define it in 2 lines, please. Usage meaning कितना कहाँ प्रिंट में छपेगा, बिलबोर्ड में लगेगा, ऑनलाइन यूजेज है, क्या क्या यूजेज है, दैट्स इम्पोर्टेंट. सेकंड, आवर्स ऑफ वर्क. अगर किसी ने आपको बोला कि 8 या 10 घंटे का शिफ्ट है और आपको 20 घंटा काम कराया, यू नीड टू गेट ओवर टाइम. थर्ड, इफ यू आर बीइंग sort of, if it's a job which is outstation, right? So transport, flights, tickets, this, that, all that, you'll have to look at that contract overall and rework that. That's it. Whether what they've said on text or on call collaborates with what is written on the contract. Do they sign everybody on for in perpetuity or there is a tenure, 1 year exclusive, 2 years exclusive? Depends how you do it. So that is another thing which they need to keep in mind, that nobody should sign you on perpetuity. जिंदगी नहीं sign off कर रहे हो. और 20 साल तक वो फोटो लगाया और आपको पैसे ही नहीं दिए. That will not work. Yes. क्योंकि वो लोग अपने सामान बेच रहे हैं और वो लोग पैसे कमा रहे हैं ना, आपके फोटो यूज करके वो लोग पैसे कमा रहे हैं. So you got to get a share of that. Exactly. So there needs to be a tenure to it. Yeah. You need to look out for कौन सी डेट है प्रोजेक्ट्स की, आप वो डेट्स पे अवेलेबल हो. जो मनीज डिस्कस हुए हैं वो मनीज उसके अंदर मेंशन्ड है. पेमेंट टर्म्स जो डिस्कस हुए हैं वो पेमेंट टर्म्स उसके अंदर मेंशन्ड है. आप कहां जाने वाले हो, कहां रहने वाले हो, कैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आपके साथ कोई आने वाला है, कोई ध्यान रखेगा कि नहीं, हेयर एंड मेकअप का क्या सिनेरियो है, स्टाइलिंग का क्या सिनेरियो है, कौन सी टीम इन्वॉल्व होने वाली है, प्रोजेक्ट की आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. क्या आप सिर्फ प्रिंट कैंपेन कर रहे हो, क्या आप टेलीविजन भी कर रहे हो उनका कमर्शियल, क्या आप उनके लिए रैम्प शो पे भी चलने वाले हो. They're getting paid per show or per day. If they're getting per day, then even if they're doing, like, you can't, if they're getting paid per day, you can't tell them that you'll have to do 25 shows. There'll be a cap of the number of shows also that you can do. A lot of exploitation happens there. I want to say that. क्या आप उनके ब्रांड एम्बेसडर बनने हो कि आप सिर्फ एक एज ए मॉडल काम कर रहे हो, क्या आप उनके साथ एक्सक्लूसिवली साइंड हो. अगर एक्सक्लूसिवली साइंड हो तो क्या टेन्योर है उसका, कितने टाइम में वो खत्म होगा, क्या कूल ऑफ पीरियड है. कूल ऑफ पीरियड का मतलब ये होता है कि आपका एक्सक्लूसिविटी टर्म खत्म हुआ, उसके बाद नॉर्मली ब्रांड्स 3 से 6 महीने का एक कूल ऑफ पीरियड रखते हैं. मतलब आप उस कूल ऑफ पीरियड में भी कोई ब्रांड उस इंडस्ट्री का और साइन नहीं कर सकते हो, जिसको कि कंपैरेटिव ब्रांड बोला जाएगा. उस ब्रांड के पास प्रोजेक्ट जरूर स्टडी करो. वो ब्रांड किस तरह का प्रोजेक्ट्स करता है, किस तरह से अपने मॉडल्स को, अपने टैलेंट्स को प्रोजेक्ट करते हैं, किस तरह का प्रमोशन होता है. आपके कॉन्ट्रैक्ट में यह भी हो सकता है कि आधा मॉनेटरी बेनिफिट है जिसमें पैसे हैं, आधा बार्टर है विच इज
नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जहां पर वो आपको विजिबिलिटी देंगे, प्रोडक्ट देंगे, सर्विसेज देंगे, तो सब कुछ चेक करो कि आपको बेनिफिट क्या है. Another very important thing you need to know is terms of termination. Why the terms of termination are important to be noticed? Because we need to see whether the contract is not one-sided. Okay. Sometimes the contract only favors the client and the client alone. Okay. And not the talent. Okay. जब एक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होना होता है तो वो किन किन कंडीशंस पे हो रहा है, दैट यू नीड टू मेक श्योर आर इक्वल. क्लाइंट डज नॉट हैव एन अपर हैंड. आप शुरू कर रहे हो तो उसमें होगा ये कि क्लाइंट यूजुअली अपना एक अपर हैंड रखेंगे क्योंकि एजेंसी साइन करती हैं आपको. बट यू नीड टू गो ahead and make sure that there is no sudden termination without any rhyme or reason. If there is a termination, you need to make sure there is certain term, there is certain condition, there is something that safeguards you and your interest as well. आप जो शूट करने वाले हो, जो आप कैंपेन करने वाले हो, उसमें आप अकेले हो कि आपके साथ और भी मॉडल्स हैं. अगर और भी मॉडल्स हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि अच्छा उनसे पूछ लो कि आपकी विजिबिलिटी क्या होगी, क्या आपकी अलाइनमेंट है उस प्रोजेक्ट के अंदर. यू जस्ट डोंट वांट टू गो अहेड एंड वेस्ट योर टाइम ना कि ऐसे ही, बट दैट डिपेंड्स ऑन अगेन हाउ मच यू वांट दैट प्रोजेक्ट. कई बार बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट से suddenly you are somewhere recognized by a big casting director and you're picked up from there. So go ahead and make intelligent choices. Be very aware of, because once you sign on, then you cannot go ahead and cry about it. So please check everything. अगर कोई फोटोग्राफर है, कोई वीडियोग्राफर है, कोई डायरेक्टर है, क्या उनका नाम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है? किन के साथ आप काम कर रहे हो? टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी अगर है तो कौन सी एजेंसी है? अगर आप किसी एजेंसी से रिप्रेजेंटेड हो तो मेक श्योर द मनीज दैट कम इन द कॉन्ट्रैक्ट यू डू अ नेट कैलकुलेशन इन योर हेड कि अच्छा इतने का कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इतना एजेंसी ले लेगी, मेरे पास इतना आएगा, क्या मैं इतने में काम करना चाहता या चाहती हूं? Make sure everything you think of so that when you go to work, you go with full heart, full preparation and full enthusiasm. Because every time you give your 1000% to a project, you open roads, you open spaces for you to get aligned for other projects. Signs that a project may be farce. लड़की हो तो हमेशा क्लाइंट या कोई भी काम निकालने के लोग हैं, ऐसे लोग जेन्युइनली बहुत कम होता है कि अभी भी यूज करने के लिए लोग हमेशा रेडी होते हैं कि किसको कैसे यूज कर सकते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट. प्रोडक्शन हाउस कौन सा है और को एक्टर कौन है और पेमेंट कितना मिलेगा? ये पता चलता है कोई क्लाइंट सच्चा है कि फेक है. झूठे तो बड़े हुए ने थे. बड़े वाह पे यार. झूठा ना भी टाइम वेस्ट किया है. रिक्शा ला के इतने जाओ, मुलुंड जाओ, थाने जाओ फॉर मीटिंग, फॉर photo test pictures, probably they might be using to so it is what it is. I mean, सुनो, टेस्ट शॉट के लिए बुलाते हैं और फिर उसको एज ए कैंपेन यूज करते हैं. आपको पता चल जाता है कैसे कौन सी हरकतें होती है जिससे देख के आपको पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट झूठा होएगा? प्रोजेक्ट झूठा. अच्छा, तो ऐसे भी हो सकता है कि जो बंदा है बहुत शेडी बिहेव करे, जैसे उसकी जो क्लाइंट है वो क्लाइंट ठीक से बराबर से बिहेव नहीं कर रहा. जैसे कितनी बार अगर आप क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दोगे उनसे, अगर आप जो आपको बुक कर रहा है उससे आप क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे कि भैया ये बताइए कि कितने दिन शूट कर रहे हैं, ये शो कहाँ हो रहा है, पैसे कब मिलेंगे, मुझे एडवांस मिल सकता है कि नहीं. अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी इंट्यूशन लगती है कि ये बंदा सही नहीं है, 50% एडवांस पेमेंट हमेशा ले लो. और अगर बंदा नहीं दे रहा, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग. You have, see, you got to be street smart. सबसे पहले लॉजिकली सोचो. पहली बात, आपसे जो कांटेक्ट में हैं वो आपसे शुरू में कांटेक्ट में हुए फिर गायब. आप पूछ रहे हो, डेट पूछ रहे हो, टाइम पूछ रहे हो, कोई जवाब ही नहीं आ रहा. देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन. यू डोंट नो व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी, वेयर यू आर सपोज्ड टू बी, कहां आपको जाना है, कब जाना है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं आ रहा है. खाली आपका डेट ब्लॉक कर रही है.
दैट मे बी अ गुड साइन फॉर यू टू नो कि शायद ये झूठा ही है, शायद कुछ होगा नहीं। बहुत बार जो प्रोजेक्ट्स सच्चे होते हैं ना, उसमें कुछ फीस आपको एडवांस मिलती है और कुछ प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मिलती है। अगर आप स्पेशली किसी नए इंसान के साथ काम कर रहे हो, इफ यू आर वर्किंग विद समबडी न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, you should make sure that there is a certain amount of advance that you do get, because वो ये कंफर्म कर देता है कि वो भी अलाइंड है उतने ही उस प्रोजेक्ट से जितने की आप अलाइंड हो, ताकि कल को अगर वो कुछ कैंसिल भी करते हैं, you have some amount of advance with you, so it's not all gone for waste. डॉक्यूमेंटेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपको बोल रहे हैं नहीं नहीं फोन पे हो गया ना, व्हाट्सएप पे हो गया ना, आप समझो हो गया। See, if you're senior enough, if you've been a part of this industry, you know the person or they've come through some reference, it may work. But if you don't know the person, आप इंडस्ट्री में नए हो, आपने कभी काम ही नहीं किया है, तो आपके पास एक कॉन्फर्मेशन तो होनी चाहिए ना, ऑफिशियल ईमेल से। ईमेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हाउ डू यू होल्ड द पर्सन कि भैया आपने तो मेरा डेट ब्लॉक किया था, अब आप सडनली गायब हो रहे हो, कुछ तो बताओ। और ऑफिशियल ईमेल से जो ऑफिशियल आईडी से जो ईमेल आता है ना, उस पर एवरीबडी नोज दैट दे आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, सो इवन इफ दे हैव टू कैंसिल इट, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल इनफ ऑफ लेटिंग यू नो कि कैंसिल कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको ऐसा बोले शायद कि यू नो व्हाट, हमारे पास बजट नहीं है, आप अपना ट्रैवल स्टे अगर खुद देख सकते हो तो देन कम फॉर द प्रोजेक्ट। यू आर टेकिंग अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सेल्फ बाय डूइंग दैट, क्योंकि पता चले आप खर्चा करके वहां पहुंच गए और वहां पे कोई है ही नहीं, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। सो जो क्लाइंट बहुत सेटल्ड होते हैं ना, जो क्लाइंट्स या तो पुराने हो या जिनके साथ आपने काम किया हो या जो सच्चे हो, वो सब कुछ आपके ऊपर नहीं डालते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर हायरिंग यू एज अ टैलेंट। दे नीड टू मेक श्योर दैट यू आर प्रोवाइडेड फॉर। इफ इट इज नॉट हैपनिंग इन योर सिटी, योर ट्रैवल, स्टे, फूड नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द क्लाइंट। अगर आप रेगुलरली काम कर रहे हो और आपने फीस ऐसी कोट की है जिसमें सब इंक्लूसिव है, गेट इट ऑन ईमेल that is the final amount that you will be charging for that project, then only। और अगर एडवांस मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। देन जब आप किसी प्रोजेक्ट के साथ अलाइन होते हो ना, ये तो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, दे शुड बी गोइंग अहेड एंड डिस्कसिंग विथ यू द क्रिएटिव्स। व्हाट आर द क्रिएटिव्स, व्हाट इज द एम्बियंस लाइक, what is the kind of mood? There should be a creative meeting with the photographer or the videographer or whosoever, the creative team. If nothing of that sort is happening, you have no clue what you're going for. It may be farce. Somebody may be just sussing you out, saying that चलो check करते हैं। मेरे पास आज तक खुद कितने मैसेजेस आते हैं। My clear reply to them is, please send an email to neerajgabaconnects@gmail.com from an official email address. If you do not, we will not entertain that. So you need to go ahead and take stand for yourself. Use this. Use basic common sense. Common sense will help you survive in this industry. अगर मिस्टेक हो भी गई और अगर आपने विश्वास कर भी लिया, don't get so bogged down by it, because it's a part and parcel of life. We all have been cheated. We all, and it's not okay. It's not okay. But if the same person comes and tells you, oh, you know what, I have another show or a shoot or something, don't be stupid, man. Make mistake once. Not no. Okay, then na pehli mistake tode the, दूजी mistake mere the. Yeah. If you do not use your basic common sense and your instincts, then you're leaving too much to पता नहीं किसको, भगवान भरोसे जैसे बोलते हैं। You don't want to be a person of भगवान भरोसे, right? You want to come across as an intelligent person. और पूछने में शर्माना नहीं है, बिकॉज आपको अपने आप को सेफगार्ड तो करना ही है ना। इफ इट इज अ फेक प्रोजेक्ट, व्हाई वुड यू वांट टू गो अहेड एंड पुट इन सो मच ऑफ योर एनर्जी इन प्रिपेयरिंग फॉर अ फेक प्रोजेक्ट जिसमें कुछ है ही नहीं। मतलब अपना पागल बनाना है क्या? या तो सोच के बैठो कि भैया चलो आओ, आप भी पागल बना लो, आप भी पागल बना लो, आप भी पागल बना लो, हमारा क्या है? आर यू वन ऑफ दोस? नो ना। सो आइडेंटिफाई विद दीज साइंस, इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई। एंड द अदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई भी क्लाइंट या एजेंसी, अनलेस यू आर ऑन द शूट एंड इट इज एन अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम, देन somebody may call you at odd hours, non business hours. बट अगर ये आपको कोई रात को 3 बजे फोन कर रहा है ना, तो ये हो सकता है ये बिजनेस कुछ और ही चल रहा हो। तो जरा ध्यान से
Please, this industry is full of people who like to take advantage of people. So be intelligent, be aware, find references. अगर आपने किसी के साथ काम नहीं किया है तो देखो उन्होंने पास्ट में किसके साथ काम किया है, चेक करो. I know experienced models who have gone through shit with people who got them onto a project saying that आप जैसे ही वहां पे आओगे हम आपको आपका कैश दे देंगे या आपको चेक दे देंगे या आपकी पेमेंट हो जाएगी, और वहां जाते ही डब्बा गोल. So it is very important that you safeguard yourself in this industry. Safeguard self. कैसे कर सकते हो? अब आपको कहीं किसी ने प्रोजेक्ट के लिए बुलाया, आपको नहीं पता है, आपने कभी उनके साथ काम नहीं किया है, but you're represented by an agency. Always have somebody from the agency accompany you. It will always help safeguard you because then there is somebody who's spoken to them already. They can go ahead and do any interaction that is required with them. Secondly, obviously another physical person present, it brings you to peace, है ना? शांति थोड़ी आ जाती है अगर आपके साथ कोई गया हुआ हो. एजेंसीज स्पेशली अगर आपको जो रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे वो इतना चार्ज कर रहे हैं कमीशन, you might as well request them, no, please send somebody with me because I've never worked with a client before. It's a new city, it's a new place, I don't know the place. ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट बोले नहीं हमारे पास सिर्फ एक का ही बजट है. But please make sure that you have that number, that person's contact from the agency who's available to you 24 hours a day when you're going ahead and doing something like this. जिनके साथ काम किया हुआ है या जिन लोगों को आप जानते हो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है, that always brings in a little bit level of like peace. You start feeling comfortable. अच्छा चलो, you know what, मेरे और दोस्त हैं मॉडल जिन्होंने काम किया है इनके साथ, तो पता है कैसे इंसान है, what are the people all about, how do they function. The other thing is, go ahead and make connections with peers in this industry. जो और मॉडल्स है ना आसपास, उनसे थोड़ी दोस्ती यारी बनाओ, ऑनेस्ट वाली. बिकॉज अगर आज आपके कोई काम आएंगे तो कल आप भी किसी के काम आ सकते हो. बिकॉज अ टाइम विल कम व्हेन यू वुड हैव प्रोग्रेस्ड इन योर करियर. somebody would be joining in the industry afresh. They would want to have somebody like you. Don't just look out for guidance. धीरे 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 खुद को भी उस लेवल पे लेके जाओ जहां पर आप भी किसी को गाइड कर सको. So when I'm talking about safeguard self, I'm also meaning that prepare yourself so that you can help somebody safeguard themselves also. अपने आप को safeguard करने के लिए you can always go ahead and ask for information. Information मांगने में कभी नहीं शर्माना. पूछो क्या प्रोजेक्ट है, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना टाइम लगेगा, कितने लोग हैं, कौन कौन है वहां पे सेट पे. No, if somebody is for real, they will give you that information. They will only think you're an intelligent person who likes to know their environment. हम लोग जब कभी काम पे जाते हैं, हम लोग की कोशिश होती है ना कि हम 15 मिनट 10 मिनट पहले पहुंच जाएं वहां पे, so that we know the environment. It's the same thing. You want to know the environment because यहां पर तो मॉडलिंग में every other day it's a different project, different people, different industry, different expectations, different spaces. So why not go ahead and safeguard yourself against all of that as well by asking. जितना पूछोगे उतना पाओगे. मैंने बहुत बार देखा है मॉडल्स डर जाते हैं, नहीं पूछ लिया ज्यादा तो काम नहीं देंगे. रिस्पेक्टफुली पूछो, प्रोफेशनली पूछो, इंटेलिजेंटली पूछो. बिकॉज आपको इनिशियली लगता है कि अगर आप आओ और अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा हो, हाँ ये बात सही है कि आपको पता नहीं है कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो. ऐसा भी होता है बिकॉज इनिशियली आपको पता नहीं है कि व्हाट मॉडलिंग इंटेल्स, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन एज यू कीप वर्किंग और आपको समझ में आ जाता है व्हाट दिस जॉब रिक्वायर्स, देन यू नो व्हेन यू आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, यू नो व्हेन यू आर बीइंग पुट डाउन. एंड इन दैट केस अगर आप कहीं और होते तो आप शायद कुछ बोल पाते, you know, you would probably say something bad, you probably stand up for yourself. और आपको लगता है कि अगर आप काम में if you stand up for yourself तो आपको फ्यूचर में काम नहीं मिलेगा इनके साथ, राइट. एंड मॉडलिंग में 3-4 लोग तो है, 3-4 कोरियोग्राफर्स हैं जिसके साथ आप काम करते हो. तो अगर उसमें से आप एक के साथ अपना रिलेशनशिप खराब कर दो तो फिर आपके पास 25% is gone. Stand up for yourself. No one else is going to stand up for you. No one. सबको अपना अपना काम देखना है, अपनी अपनी चीज़ें करनी है.
अगर आपको कुछ कहना है और अगर आपको कुछ बोलना है, बोलो. Be respectful. Just because I'm saying stand up for yourself doesn't mean you have to be rude to the person. Be extremely respectful. काम से काम रखो. Everybody knows, everybody who's an honest worker, they all know कि भैया काम है, हमारे लिए भी अच्छा होगा अगर मॉडल प्रिपेयर्ड आएगी या आएगा कि कहां काम करना है, क्या काम करना है, किसके साथ काम करना है. जब आप पूछते हो ना तो आपको पता चल जाता है. कई बार क्या होता है, आप फोटोग्राफर को जानते होते हो जो काम करने वाले हैं, कई बार आप को मॉडल को जानते होते हो जिनके साथ आप काम करने वाले हो, कई बार आप स्टाइलिस्ट को जानते होते हो. वोंट यू फील मोर कंफर्टेबल? और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस मैं पहले ही बता चुका हूं, उससे बेटर सेफ गार्डिंग कोई नहीं है. सो प्लीज सेफ गार्ड योर सेल्फ. सेफ गार्डिंग सेल्फ विल इंश्योर longevity of your career in this industry, and people will respect you. If you want to be respected as a professional model, safeguard yourself so that everybody knows यहां पर आप किसी भी तरह से एडवांटेज नहीं ले पाओगे. तो कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग इस इंडस्ट्री के आपको कैसे ट्रीट कर सकते हैं. तो इसके लिए आपका मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है. Do not give in to any nonsense. You are here to work. You are here to make your money. You are here to go ahead and show your talent. Stick with that.